Good morning, dear parents and dear students. Welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. This is class 5th, subject physics, chapter number 1 and lecture number 1. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then may you clear to related teacher. आपको इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी डाउट हो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जैसे स्कूल ओपन होगा आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर से पूछ लीजिए. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट subject which is physics in the science and the chapter number 1 which is motion and measurement. The name of the chapter is motion and measurement. Motion means to move from one place to another place and measurement means the calculation. मोशन का मतलब क्या होता है? एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करना, जाना. और मेजरमेंट का मतलब होता है मापना, नापना, मापना या कैलकुलेशन करना. ओके, सो लेट्स रीड द इंट्रोडक्शन. In daily life, the importance of measurement is well known. When we have to bring fruits, vegetables, etc. from the market, then the seller needs exact measurement of our body to stitch our dresses. We also have a approximations that how much time will be spent on a journey for our convenience. Thus we conclude that the measurement is an essential part of our everyday life. In this introduction it is saying the measurement calculation is very important in our life, because without measurement we never get the exact quantity or exact things whatever we need. Like if you go to the seller in the market, if you go to the seller to purchase, to buy the fruits, vegetable, whatever the need you have, okay, what you do, just first of all you go to the seller and ask them to measure the 1 kg, 2 kg, 3 kg, whatever the fruit or the vegetable you needs. Then the seller use the beam balance, which is a taraju in Hindi. Using the beam balance, that the device used to measure or calculate the stuff according to the quantity. Okay, using the beam balance and give you the exact quantity stuff whatever you need, and then you pay them for their purchase. Okay, so everywhere it you going to buy something, you're traveling from one place to another place, everything need the measurement or the calculation. Like if you go to the tailor to stitch your clothes, the tailor needs to take your measurement of your body parts. Then tailor quantity or the accurate value for whatever we need. Okay, इंट्रोडक्शन में ये बता रहा है कि जो मेज़रमेंट है, मेज़रमेंट का मतलब कैलकुलेशन, मापना, तोलना, उसे हम कहते हैं मेज़रमेंट. मेज़रमेंट हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. क्यों? क्योंकि बिना मेज़रमेंट के हमें कोई भी चीज़, जो भी हमें चाहिए, जो भी सामान हमें चाहिए, वो एक्यूरेट या टाइम, जो भी एक्यूरेसी है, जो भी क्वांटिटी हमें चाहिए वो हमें नहीं मिल सकती. अगर आप फ्रूट्स वाले के पास जाओगे और आप बोलोगे मुझे मैंगो चाहिए, तो सबसे पहले वो आपसे पूछेगा कि आपको कितनी क्वांटिटी में मैंगो चाहिए. तो आप बोलोगे 1 kg चाहिए, 2 kg चाहिए, 3, 4. सो ये क्या हो गया आपका मेज़रमेंट, कैलकुलेशन, वैल्यू, आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए. फिर सेलर क्या करता है, उसके पास जो भी डिवाइस मेज़र करने के लिए तराजू या इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स होती है, उस पर क्या करता है, एक तरफ आइडियल बैलेंस रखता है, दूसरी तरफ आपका स्टफ़ रखता है. फिर जब दोनों बैलेंस हो जाते हैं और तो आपको आपका सामान वो दे देता है, और आप उसके लिए क्या देते हो, उसको पैसे. तो अगर आप जाके बिना मेज़रमेंट के अगर सेलर को बोलोगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता. ओके, सेकेंड थिंग,
आप नॉर्मल अपने कपड़े भी सिलवाने जाओगे टेलर के पास तो भी वो टेलर क्या करेगा, आपकी बॉडी के पार्ट्स का क्या लेगा, मेज़रमेंट लेगा, ताकि वो एक्यूरेसी के साथ परफेक्ट फिटिंग के साथ आपके कपड़ों को क्या कर सके, स्टिच कर सके। अगर मेज़रमेंट नहीं लेगा तो आपके जो कपड़े होंगे आपको वो आपकी बॉडी फिटिंग के अकॉर्डिंग नहीं मिलेंगे। क्लियर? सो बिना मेज़रमेंट के हम क्वांटिटी, हम जो भी हमें स्टफ़ चाहिए, जो भी हमें सामान चाहिए वो हमें नहीं मिल सकता। क्लियर? आप अगर एक जगह से जाने में या इतना टाइम वहाँ आने में लग सकता है, और ये किस वजह से, हमारी कन्वीनियंस, हमारा काम आसान हो सके, हम अब आगे काम को क्या कर सके, स्केड्यूल कर सके, इस वजह से ज़रूरी है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ नीड टू मेजर डिस्टेंस। डिस्टेंस मीन्स द लेंथ। वाई डू वी नीड टू मेज़र द डिस्टेंस? हमें लेंथ मेज़र करने की ज़रूरत क्यों है, हम इसमें पढ़ेंगे। द रोल ऑफ मेजरमेंट इन आवर डे टू डे लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट एक्चुअल मेजरमेंट you cannot do your work in an effective manner. Measurement is necessary in everyday life. We buy or sell anything from the market. Shopkeepers sell his items such as sugar, rice, anything by the measurement of their mass. A worker is paid for the time he devotes to his duty. When a person is sick, the doctor measures its temperature. The use of measurement not only make life easy for all us but also have to save time, effort and the money. Okay, in this para it is again telling you the importance of the measurement in your daily life. इस पैरा में आपको जो मेज़रमेंट है, जो कैलकुलेशन है, उसकी क्या बता रहा है, इंपॉर्टेंस बता रहा है। ओके, सो if we don't have the actual measurement or the accuracy or the accurate measurement, we can't do our work in a way we want to do. Okay, like if I went to this shopkeeper and I said I just want mangoes, and he gave me 1 kg and he took the money for me. Okay, likewise same, if I went to the tailor and I said him to stitches my clothes without any measurement, what he do, he just stitches the cloth but without the fitting, without the measurement. So I will not get the stitched cloth what I want, exactly what I want. So without measurement, the work whatever we do is just the worthless. Okay, like if you went to a doctor, if you are sick, if you are feeling fever, and if you went to the doctor, and if without measurement, without checking your body temperature, doctor can't give you the medicine because it is harmless for you. Okay, so importance of measurement is it make our life easy, not only easy but it save our money, it save our time and it save our effort. Clear? इस पैरा में आपको ये मेज़रमेंट की क्या बता रहा है, इम्पोर्टेंस बता रहा है। लाइक अगर मैं किसी शॉपकीपर के पास जाती हूँ और मैं उसको कहती हूँ मुझे मैंगोस चाहिए, शॉपकीपर मुझे पूछेगा कितने मैंगोस चाहिए, मैंने कोई क्वांटिटी नहीं बताई, मैंने कोई वैल्यू नहीं बताई, 1 kg 2 kg मैंने नहीं बताया, मैंने सिर्फ उसको बोला मुझे मैंगो चाहिए, और शॉपकीपर ने आपसे क्या कर दिया, 1 kg मैंगो दिया और आपके एक्स्ट्रा मनी या ज़्यादा पैसे आपसे ले लिए। तो ये क्या होगा, मुझे मेरे पैसों का क्या हुआ, लॉस हुआ। अगर मैं उसको एग्जैक्ट क्वांटिटी बताती, मैं उससे मनी पूछती, प्राइस पूछती, मेज़रमेंट पूछती, कैलकुलेशन वैल्यू पूछती, तो शायद मेरे पैसे क्या हो सकते, सेव हो सकते थे। तो इससे क्या हुआ, बिना मेज़रमेंट के मुझे लॉस हुआ। सेकेंड थिंग, अगर मैं टेलर के पास जाऊँ, मैं उसको तो क्या वो मेरे बॉडी के फिटिंग के अकॉर्डिंग होंगे, नहीं, मतलब टेलर का एफर्ट और मेरे मनी दोनों क्या हो गए, वेस्ट हो गए, और टाइम भी वेस्ट हुआ। सिमिलरली एक वर्कर है, जैसे कंस्ट्रक्शन है, एक वर्कर है मेरे यहाँ,
एक कंस्ट्रक्शन अपने कहीं भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ वर्कर डे के अकॉर्डिंग पैसे लेते हैं, जैसे एक दिन का 500, 2 डे का, सेकंड डे 500, पर डे वो क्या करते हैं, पैसे लेते हैं। ओके, तो जो उसने टाइम दिया, जो उसने एफर्ट दिया, उस अकॉर्डिंग हम क्या देते हैं, उसको मनी देते हैं। ओके, जैसे आज आया वर्कर, आज आया, उसने काम किया, तो आज के हम उसको क्या देंगे, 500 मनी देंगे, पैसे देंगे। कल नहीं आया वो, तो उसको नहीं मिलेगा। तो इससे हमारा टाइम, हमारा मनी और हमारा एफर्ट दोनों सेव होते हैं। तो बिना एक्यूरेसी के आप लाइफ में, बिना क्वांटिटी के, बिना कैलकुलेशन के, बिना वैल्यू के और बिना मेज़रमेंट के आप कोई भी काम परफेक्टली नहीं कर सकते या प्रॉपरली नहीं कर सकते। नहीं करोगे मेज़रमेंट तो आपके मनी, आपका टाइम, आपके एफर्ट सब क्या होगा, वेस्ट होगा। क्लियर? Now next is, what is measurement? So we have learned the importance of measurement, but first we must know what is the meaning of that. So measurement means the comparison of the two quantities. Oh, okay, measurement means the comparison of the two quantities. If you have ever noticed, whenever you went to the shop and you buy something, you can notice at the beam balance, at the one pan, the shopkeeper keep the ideal balance, that the stone, whatever we need to, whatever the stone, 1 kg of 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg, and on the so what the shopkeeper actually doing, it just balancing the two quantities, it's comparing the two quantities. When the two quantities get equal, it will equal to that quantity and it will give you that stuff. So measurement means the comparison of the two thing. मेज़रमेंट का मतलब क्या होता है, दो क्वांटिटीज़ को हम क्या करते हैं, आपस में कंपेयर करते हैं, तोलते हैं। जब भी आप शॉपकीपर के पास जाएंगे, आप देखेंगे कि एक तरफ वो बीम बैलेंस या तराजू के एक स्टोन रखता है जो 1 kg 5 kg के इक्वल होता है, दूसरी तरफ आपको जो भी सामान, आपको जो भी स्टफ़ चाहिए वो रखता है। क्लियर? और जब तक वो दोनों इक्वल नहीं हो जाते, बैलेंस नहीं हो जाते, तब तक वो क्या करता है, मेज़र करता रहता है, सामान ऐड करना या निकालना। तो मेज़रमेंट का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों को कंपेयर करना। A and B line, two lines are given here. Look at the two lines given in the figure. Can you tell which line is longer? Can you tell which line, A or B, is longer? Now measure the line with the help of the scale and find the answer. Now use your scale and measure the two lines separately and tell the answer that which one is longer. So measurement is the process which determines as to how many times a given physical quantity is in relation to the unit of that quantity. That means measurement is to find out the quantity, okay, how many times that things we have, okay, 1 kg, 2 kg, 3 kg, how many times, 1 time, 2 times, 3 times, this is the measurement. Okay, and in relation to unit of that quantity, that means like when you go to buy mass, and according to their mass it asks you for the money. Clear? So whatever the physical quantity is, we always use the unit of that quantity. Like for the mass we use the kilogram. So you never go and ask to shopkeeper like I want 1 sugar, I want 2 sugar. No, you always use the unit of the mass for their stuff, like 1 kg, 2 kg, 1 meter, 2 meter, 3 kilometer, 5 kilometer, 1 second, 2 second, 2 hour, this second, this kilometer, meter, this kg, gram, all this is the unit of the physical quantity. Clear? मेज़रमेंट का मतलब क्या होता है, मेज़रमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें आप ये फाइंड आउट करते हो कि एक्चुअल क्वांटिटी क्या है, वो क्वांटिटी की वैल्यू क्या है। क्लियर? जो भी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जिसे हम मेज़र कर सकते हैं। आप शॉपकीपर के पास जाते हो, आपने 1 किलो शुगर मांगी, तो वो क्या कर रहा है, शुगर का क्या कर रहा है, वेट मेज़र कर रहा है। और जब तक शुगर का 1 kg वेट नहीं हो जाएगा, वो मेज़र करता रहेगा। तो 1
केजी, 1 केजी क्या हो गया, शुगर का मास हो गया, वेट हो गया। क्लियर? तो वेट क्या हो गया, मास क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी, और वो उसको क्या कर रहा है, मेज़र। तो ये क्या हो गया, मेज़रमेंट। ओके, और हम हमेशा फिजिकल क्वांटिटी की क्या यूज़ करते हैं, यूनिट यूज़ करते हैं। क्लियर? यूनिट जैसे अगर आप शुगर लेने जा रहे हो मार्केट में, तो आप ऐसे नहीं कहते जाके कि मुझे 1 शुगर चाहिए, 2 शुगर चाहिए, 3 शुगर चाहिए। आप क्या कहते हो, मुझे 1 kg शुगर चाहिए, मुझे 2 kg शुगर चाहिए। मतलब केजी, किलोग्राम, किलोग्राम क्या हो गई, मास। लेंथ मेज़र करते हो तो आप क्या कहते हो, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 मीटर है, ये 3 किलोमीटर है। तो किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर ये क्या हो गई, आपकी यूनिट हो गई, किसकी, लेंथ की। और लेंथ क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वो सारी क्वांटिटी जिसे हम क्या कर सकते हैं, मेज़र। तो लेंथ को हम मेज़र कर सकते हैं, मतलब लेंथ क्या हो गई आपकी, फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? सो यूनिट हो गई किलोग्राम, लेंथ, मीटर ये, और जिसके साथ हम नंबर यूज़ करते हैं तो ये क्या बन जाती है, एक मेज़रमेंट बन जाता है। क्लियर? और मेज़रमेंट में हमेशा हम नंबर और यूनिट दोनों साथ में लिखते हैं, क्योंकि बिना नंबर के और बिना यूनिट के मेज़रमेंट पॉसिबल नहीं है। क्लियर? So here we complete our this lecture, lecture number 1. We will continue from the same page in our next lecture. There is no homework in this lecture. Thank you. Have a nice day and stay safe.